श्रृंखला चल रही है ये गोमटसार जीव कांड को लेकर के। तो उसमें हम जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं डॉक्टर सी देवकुमार साहब का, और वो बहुत ही इतनी मेहनत करके आते हैं। जो भी नए जुड़े हैं देखेंगे कि वो एक ही ग्रंथ का नहीं और दूसरे ग्रंथ के रेफरेंसेस भी उसमें डालते हैं, और जितना मतलब हो सकता है उतना पूरा रोचक बना करके प्रस्तुत करते हैं। तो मैं डॉक्टर देव कुमार साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि मंगलाचरण भी करें और अपना व्याख्यान भी शुरू करें। डॉक्टर देव कुमार साहब। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवच्छायानम, नमो लोये सव्वसाहूनम, येषो पंचनमोकारो सव्वपापपनाशनो मंगलानंच सव्वेसिम परमं अवै मंगलम, परमं अवै मंगलम, परमं अवै मंगलम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। भंडारी साहब को खास तौर से और हमारे अनिल कुमार भाई साहब सभी को, सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। बाई चांस मैंने कंप्लीट किया था, मुझे याद आया कि ये पूर्व संध्या है। शाम को पल साहब का फोन आया था, तब मैंने शेयर किया। इट इज सो कोइंसिडेंस, हैप्पी रादर वंडरफुल एक्सपीरियंस। दिखाई दे रहा सर? जी हाँ। Thank you so much. That's wonderful. Should I have to make it bigger? Is it okay? Yeah. Is it all right, sir, now, or is it we? This is बहुत fine. अच्छा This है, is बढ़िया fine. है। Thank you so much, sir. श्रुत ज्ञान मार्गना जो है सचमुच महाअधिकार है ये जीव कांड में, और पिछले बार इसके बारे में शुरू किया था, और आज मैं आपके अनुमति से इसको आगे ले जाना चाहता हूँ। सिद्धं शुद्धं पनमिगजिनिंदवरनेमि चंदमकलंकं गुणरयनभूषुनुदयं देवस्य परुवनं वोचम् अरहन्त भासि यत्तं गणगरदेवेगिं गन्धियं समं पनमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वकिं शिरसा। सो पिछले में ये स्लाइड दिखा दिया, व्हाट आर दी Agams encyclopedia I've been consulting with respect to this Sudhagyan. When I gave a talk on Madhigyan, and I think I had so many things. Two of you, Dr. Bhandari Saab, Dr. Naveen Mehta Saab ne kaha thoda aap jaldi gaye. I like to give a very perspective about it. When I was in service, I was the project leader of the World Bank funded project on digital and agricultural library management, which time के लिए था, उस time मुझे मौका मिला. I see a great similarities on knowledge management. If you look at knowledge management, पिछली बार दिखाया था, then if we take Madhigyan as the one, first and foremost we get just a flash, a spotting of an object, and then depending on the interest, we collect more information. Avoid, I means income, avoid means more income coming, more inputs coming. Then we store them in our own memory library. This is the way each of the process, knowingly, unknowingly, from all the organisms, what you call bonded souls, they go through this Madhigyan step by step. And of course, in description, it is of 336 type of accumulation of knowledge, retention of it. At each step, there is a rate determining step, which means there is a avaran karma for each of the avagraha, madhi jnanavaran karma. Ega madhi jnanavaran karma karke ek step mein there is that viryantaraya or jnanavaran karma ka say. That is the reason each one of us, when we teach the students, each one of the students grasp the subject in a different way because of these rate determining steps. This rate determining step is talked so much in kinetics, or mostly in enzyme kinetics. So if you understand each one of them, the best thing you could do is you look at a small 1-year-old child
Look at the way the steps go through, how the child looks at it, then shows more interest, then उल्टा पुल्टा करके देखता है, then धारणा करता है. So I made use of this small child, my own grandson, and I could see how Madhi Gyan is being accumulated by him. Now comes to Shrudha Gyan, which is part and parcel of Madhi Gyan. In the world, there is no soul without Madhi and Shrudha Gyan. I mean to say bonded souls, not the Kevali and Siddha Parameshri we are not considering here. There are 20 types. Last time I tried to give it a step by step how this Shrudha Gyan develops. And that is, Aksharatma Shrudha Dravya Sut, it has got 18 types. Ardhakshar, Pad, Sankhat, Pratipatti, Aniyog, Praprataka, Vastu, and Pur. And each one of them becomes an aggregation called Samas. So there are 18 types of sequential development of it. Aksharatmak Shrudha Gyan Dravya Srut. Or Anaksharatmak is the one which is much lower than Labdhi Akshara. Okay, for Nigod Jeev, that is there, and Paryaya Samas. So then, when Ganadhar Parameshri starts doing it, then ye जो द्रव्य श्रुत को रचना की है उन्होंने अंग प्रकीर्ण अंग बाह्य अंग प्रविष्ट करके, that is 12 अंग और अंग बाह्य प्रकीर्ण के 14 भेद रूप से द्रव्य श्रुत का उन्होंने संग्रह किया है. द्रव्य श्रृंग पद रूप में है, अक्षर रूप में है, बट हमें उसकी जो इंफॉर्मेशन देता है वो अर्धाक्षर है, अर्ध रूप में मिलता है. That is called Bhava Srut, which can be expanding to infinite levels. Now, if we can put it, depict it in a chart like this, Anaksharatmak, unlettered, there are 2 types, Labdhi Akshara and Paryaya. So that is Paryaya and Paryaya Samas. So every soul minimum has to have this Paryaya Gyan. Paryaya Gyan, Niravaran Gyan, last time we discussed it. That is, if it is Avaran Ho, Avrit Ho, then the soul loses its distinct property. That's why there is a Gyanavarnikam, Niravaran Roop se Paryaya Gyan में काम करता है. Paryaya and Paryaya Samas से सूक्ष्म जीवों का शुरू होता है. Then it keeps on increasing in the letters Akshar Gyan or Pad Gyan. Then Pad ka, when we just assemble them in a systematic manner, Sankhat. And then further organization, chapters, books, etc., it becomes aggregation, Pratipatti. Then further is the lead Aniyog Dwar. The Aniyog is a bigger classification. We have it as Char Aniyog. Aniyog means which follows the Shrudha Gyan. And Aniyog further goes up to Praprada, further higher categories. They see the classification goes on and then Praprad. Then Vastu. Last time we discussed all this. Vastu, a collection of Vastu is called Pur. A collection of Pur is called Purva Samas or Purvadar. So Shrudha Gyan basically has got 2. One is 12 Angas, limbs, and Anga Bhagya, which has been kept outside the limbs of it. I talked about it. I invite the kind attention of Professor Bandari Saab. This is excellent. I have also put the story I brought in. The 2 power 64 is the, when you multiply 2 continuously, 2 into 2, 4, 4 into 4, 16, 16 into 4, 256, 256, 4, etc. That comes to 202 power 64. 64 is the Varnamala mein Akshar, total Akshar. So the question is, how many Akshar can be there with combinations, without combination, but not repetition? Ketangar Bhagwan ne ye kaha, you will have a samudaya akshara 2 power 64 minus 1. Minus 1 takes care of the repetition. This is a huge number. It comes to about 18 quintillions. This is the one. So the nana varani sakamma sahanke chavo paidivo javadiyani akkarani akkara sanjogava. So jitna akshar hai
उतना हमारा ज्ञानावर्ण कर्म भी, शुद्ध ज्ञानावर्ण कर्म भी काम करता है. That's the reason each one of us got limited grasping or retention, explanation. Each one gets divided to that. Since it is a huge number, this is something again I'm really looking for answer. How this Madhyapata came? Madhyapat is that, how much? 16 billion. Am I right? It is 16 billion 348 million 307 1,888. This is the median पद. अब इसकी जो टोटल है, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मध्य पद comes this. ये कैसा आया? I think our mathematicians should do the job. I have written 2 mathematical letters also, they have not replied how this is coming. So when you divide S by Madhyapad, we get a reasonable countable path. 112 crores 83 lakhs 58,005 pad. This is the something which we keep worshipping every day. Koti shatam dwadasham chaiva total ashidi lakshani panchasat ashtraucha sakasra पंचशतम प्रणमामि करके रोज हम लोग वंदना करते हैं. आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा. इट्स ओनली 8 कितना डिजिट है? 10 डिजिट मोबाइल नंबर जैसा है. जिसको आप याद करेंगे बहुत सुंदर रहेगा. दिस कम्स कंप्लीटली. पिछली बार मैंने दिखाया था इतना पद कौन पढ़ेगा? एक ही अक्षर, ओम अक्षर और अर्गम अक्षर. पिछली बार इसके बारे में सिद्ध हेमचंद्र व्याकरण से मैंने दिखाया. वो स्लाइड मैंने अभी इस बार दिखाने रहा. If you divide this, you get a remainder is 80,108,175 action. This is the one which goes to Angabhag. The residual is the point. Now coming to the other story, someone was smart enough, so he went to a king, rich king actually, who was not aware of this. He said, मुझे छोटा सा आपको धन देना, कुछ नहीं, जो पहले में 2 ग्रेन दीजिए, व्हीट ग्रेन, ये 64 है, इसके आप 2 दुगना करके भर के जाए, उतना ही मुझे चाहिए. The king agreed, but minister was showing him, don't do that, but he didn't listen. Please look at it, the number of grains. I think even today we are not producing that much of wheat. So that is the one. This fellow, the smart fellow who knew the Sruddha, went to a king who was not aware of it. That's how the chess was possibly discovered. There is, I read somewhere, Banaras was once upon a Jain city. It seems they had a model of this Sruddha Akshar total. That is 2 power 64 minus 1 का पता नहीं कैसा उन्होंने बना कर रखा है, एक मॉडल बना कर रखा है. So chess discovery reminded because of this intelligence of this fellow. So if you look at it, 112 crores 83 lakhs 58,005 per the Madhyapad, how they are distributed in Sruddha Gyan. So we have, you know that there are 12 ang limbs of the Sruddha Gyan. 12th one is called Drishti Vat. And if you see that we have numbering seems to have been something upar acharang or दूसरा रह गया. I don't know how it happened. Sorry. And we are missing some ang. Acharang and next one. So there are 11. In our Swetambar Parampara, the numbers are doubling, simply doubling of it. You start with 72, it goes on. Here in Digambar Parampara, they are very definite numbers of it. And I was reading the edited book of Nandi Sutra, where Parasmani Sahib was edited, Maharaj Sahib, and he has calculated, currently we have 35,626 Slok Pariman Akshara. Slok Pariman is not Madhyapad. So that is what we have to understand. So we have, in terms of number of word pad, we have very little we could say. Now, if you take the depiction of Pada Sankhya of 11 Angas, then you see that Vipak Sutra is the largest share.
because karma vipak, that's something which remind the knowledge was not lost easily. We have Panchasankara Granth both in Swatambar and Digambar. So 44% of it Vipak Sutra. Prashna Vyakarana, again question and answer type is 22%. Anuttara Upadika Dashanga is 22%. This may be a little different when we take into account the Swatambar Parampara. So these are the major two. Vipaka Sutra, because of the large one, Acharya Darsena could remember it in Girnar Parvat. So that's how we got this Shadgantakamam. And Kasai Bakud Gunadhar Acharya got this because of the large number, which did not even 683 years after the Nirvana Mahavir. That's it remained. That's the point. Some of the even Prashna Vyakaran also that has remained. It is not complete dried up. If you look at the share of the Drishtivad about the 12 Angas, Drishtivad alone takes a lion's share of it. 96% Madhyapath is in Drishtivad. And all the total path of 11 Angas is only 4% of it. So we need to understand when our people say we lost Drishtivad, they don't say we lost all of them. Considering the vast amount of the numbers, 108 crores, etc., and they say we have almost lost it. But we are not lost it. That's an important point. Residuals are here and there. Otherwise, we will not have many the Granthas, Churni, Bhashya, etc., they all carry this point. So Drishtivad Ang has got 5 kind of parts called Parikarm, Stut, Pradhamaniyog, Purvakat, and Chulika. And even if you distribute that, Purvakat is 88% of the total. That's why in Swetambar say we lost with Purva Gyan. In a way true, but in a way not all that absolutely true. So we have Chulika 9%, then Parikarma 2%. I am talking about Pad ke hisab se, not Ardha ke hisab se nahi. Sutra 1%, Pradhamaniyog only 500 Madhyapath, no percentage, very little of it. We don't deal much of the Puranas. That's an important point. So if you look at the Parikarma of it, again Padka or B distribute kare, Parikarma gets 5 sections, Chandra Prakyapti, Surya Prakyapti, Jambudvip Prakyapti, Dvipa Samutra Prakyapti, or Vyakya Prakyapti. So they have this, and you can see the Vyakya Prakyapti has got highest number of all rest of the descriptions. See, these descriptions are very definite. Whatever is that, this is not, we'll see later from Ratnaganda Sravakachar, neither excess nor minimal, but exaggeration nahi hai. The Sutra section of Drishtivad, the Pada Sankhya is 1%. This is the one which it deals with, the Khandan Mandan ka karte hain. 363 false creeds are always present in one form or other. And that is the requirement is that by our Acharya Munis and others, everybody, they want to dispel of this so that we can be reinstated in the correct Jina Dharma. So out of the 363, 180 as Kriyavadi, 84 is the Kriyavadis, 67 are Agyanvadis, 32 are Vinayavadi. If we see all of the shades, we can always analyze it, but we need to treat the path which is true and eternal. Pradhamaniyog, I said, is 5,000 Madhyapath, and the Pradhamam Anuyog means which follows the Anurup, which is Srutaka follow karta. This Pradhamaniyog contains the accounts of the 63 Salaka Purush, which means the complex of 24 Tirthankaras, 12 Chakravartis, 9 Narayan, 9 Pratinarayan, and 9 Balabhadras. Please note that we have a Mangalacharan, Mangalashtakvi. In fact, sort of we say Mangal Unkuli Kate, Sabiko. So it is not that we don't worship Ram and Krishna, which is true, but it is the graded way. Tirthankar and then these Baldev, Narayan, etc. In addition, we have stories of Kamadevas, Ganadharas, and great personages. These are historical and political accounts will also be reflected in this Pradhamaniyog. The next slide I'll be showing the kind of the treatment of Pradhamaniyog contains 4 types of stories: Akshepini, Vikshepini, Samvedini, and Nirvedini. This is basically to strengthen us. We should not be doubting Thomas, that's the idea of it.
Then Pradhamani Yoga has got two ways of saying Mool Pradhamani Yoga and Kandika and Yoga in our Svetamba Parampara. What are the four types of stories? Whenever we teach about religion, we need to empower these tools. These are the four tools toolkit. Akshepini, Vikshepini, Samvedini, Nirvedini. These four are used to strengthen the person into the Jinendra mark. What are they? Akshepini, Kadam Kuryat, Prajna, Swamata Sankrahe. Yani ki Swamata Sankrahe, to put us into that pedestal. Jain मत में, जैन धर्म में चलने के लिए आक्षेपणी कथाओं को करके हम वे प्रोत्साहित करते हैं. विक्षेपणी कदाम तच्च तज्ञ कुर्यात दुर्मद निग्रहे. विक्षेपणी इस खंडन करता है ये दूसरे 363 क्रीड में क्या क्या दोष है उसका हमारे लिए समझाता है ताकि हम उसमें फंसे नहीं. संवेदिनी कदा पुण्य फल संपत्ति प्रपंचने. पुण्य फल होने के संवेदिनी सलाका पुरुषों को वर्णन से, उनका अनुसरण करने से कैसे पुण्य का संचय होता है, ऑटोमेटिकली होता है. वी डोंट हैव टू लुक फॉर द पुण्य. निर्वेदिनी कदाम कुर्यात वैराग्य जननम प्रति. निर्वेदिनी से वैराग्य, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्य आत्म तत्व सूत्र में दिया. वेरी गुड. ये महापुराण का श्लोक है. नाउ तो पूर्व है, 14 पूर्व है. सो 14 पूर्व में उसके नेक्स्ट इज ईच वन देयर आर वस्तु. वस्तु इज ए काइंड ऑफ what should you say, kind of order, family, then प्राप्त each one of them. So if you look at it, उत्पाद पूर्व के 10 वस्तु है, उनमें एक वस्तु में 20 प्राप्त होते हैं. प्राप्त आर द चैप्टर्स and which very particular अधिकार का अधिकार कह सकते हैं हम, उसके बात करा है. सो पद संख्या 1 लाख पद मध्य पर. अग्रहायणी पूर्व, so it has 14. This number will be just multiplied by 20, and so we have 14 of the अग्रहायणी पूर्व. जो अग्रहायणी पूर्व से हमें षड्घंटा का रचना का पिछली बार मैंने बताया था. वीर्यानुवाद पूर्व, अस्ति नास्ति, ज्ञान प्रभात, सत्य प्रभात, आत्म प्रभात, कर्म प्रभात, प्रत्याख्यान प्रभात, विद्यानुवाद प्रभात, कल्याण नामधेय, प्राणावाय, क्रिया विशाल और लोक सार. So if you total we see there are 195 vastu and huge numbers, and multiply by 20 become 3900 प्राप्त का chapters are there. Chapters are very large. अनुयोग से भी बड़ा है ये. So if you look at it the graphical way, Pranavai, Log Bindusar, Pranavai, Kalyana Namadey, Atma Prabhat. So if you see a lot of our thing, Pranavai has picked up as a योग. पूरा लोग प्राणावाय में लगे हुए हैं. लोग ने इसको पकड़ लिया क्योंकि आत्म प्रभा द्वारा में ज्यादा रुचि नहीं रहा. So इसलिए we see lot of प्राणावाय का health, Ayurveda, etc. We see these are all happening. Kalyana Namadey is 27%. We'll see what it discusses about. Atma Prabhat is, that's the reason we still have lot of our Agam talking about Atma and Atma Prabhat. Log Bindusara is also, we have Moksha Pakut, Moksha related है. वैसे ये distribution in terms of पद में, words, पद में ये रहता है. So then we have the Chulika. Chulika is, there are 5 types of Chulika, but in what we have in Digambas, they have these numbers, and they have just simply, again, they put it all equal. It may not be the case. So, Pad Sankhya jo hai, that if you see them, it is how much? 20 crores, 98,000. No, sorry. 2 crores, 98 lakhs, 9,200, each one of them. So this is the one we must note. Our rishis were so capable of knowing it. They can walk on water, they can go underground, they can walk in the air, they can change route, maya kata, etc. That's the reason. This is another reason our physical valor was so high, and Jainism was the dominant religion those days because of these vidya. That is the part of it. Now, if you look at these numbers, the numbers are too much. जंगल में
गुफा में जो रहने वाले ऋषि मुनि को कैसे याद रहेगा? सो उन्होंने, हम देख रहे हैं गोमटसार में वो सुंदर तरीके से ये गिवन नोटेशन अक्षरों का नंबर दिया है। और ये एक मैंने गाथा पिकअप किया। गदनम मनगम गोरम मर गद जवकाद नोनम नोननम जजलक्खा मननन दम मनोन नन ननामा मनोनन नामम रण दज धर धरानानज दान jaladi. Jaladi is the last word. So which means Chandra Pratyapti में, if this each one of them, if you write it in numerals, comes to 36,05,000 पर. और Manangangunonanam, I am not giving the numbers how he has given. These are things. So each one of them, by remembering this Gatha, you know Chandra Pratyapti, Surya Pratyapti, Jambut Pratyapti, Dvipsa Pratyapti, Vyakya Pratyapti, Sutra, Pradamani Yog, Chaudapur, और जल गता, थल गता एक्सेट्रा की सभी को आपको एक ही गाथा से नंबर, डेफिनेट नंबर without any mistake, we know it. That's important. I think how people have been mastering it. That's an point. Now, I just having said gives in terms of पद के रूप से मैंने जो आगम से लेके मैंने बताया, अभी इनका वर्णन विषय के रूप से क्या वर्णन है, इसको संक्षिप्त वर्णन, क्योंकि द्वादशांग इस महासागर, उस संक्षिप्त वर्णन का मैंने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। एक मिनट, ये मेरे को जरा, दिस इज रियली ट्रबलिंग मी। एक मिनट यार, एनीवे, आचारांक जो पहला अंग है उसमें मुनियों का, ऋषियों का, साधुओं का कैसे आचरण करें इसके बारे में, कथम चरे कथम, दैट यू नो इट, इट इज देयर आचारांक जो हमारे इसमें है। इसमें भगवान महावीर का जो उपदेश है, जदम चरे जदम चिट्टे जदम आसे जदम सये जदम भूजी च वासे च एवं पावम न बंधई। यत्न पूर्वक से काम करो कि चलना, उठना, बैठना, आहार लेना एक्सेट्रा ये करेगा। ऐसे आचारंग में डूज एंड डोंट्स, a ready handbook of manual that's available. सूत्र कृतांग, these are two I missed earlier in that showing. सूत्र कृतांग में विनयों का, ज्ञान विनय और निर्विघ्न अध्ययन क्रिया का, प्रज्ञापना, कल्पाकल्प, चेतोपस्थापना आदि व्यवहार धर्म क्रिया का तथा स्वसमय और परसमय का स्वरूप सूत्रों के द्वारा बताए गए। It is the next stage because the ऋषि young who has been initiated, दीक्षा हो गई, उनके ये सूत्र प्रदान से विनय का वो संपन्न कराते हैं, विनय संपन्नता। सो प्रज्ञापना, कल्पाकल्प, छेद उपस्थापना, व्यवहार धर्म का कैसा पालन करना है। वो लेक्चर देते तब नहीं आता है, they are cruising controlling. One second, sir. Is there any issue? No. Okay. So, sthana is a very intelligent way of putting it. Keep on asking question. 1, 2, 3, 4 बोलते जाएं। 1, 2, 3, 4 बोलते मुनि संघ में कहेंगे आप 1 में जीव द्रव्य के ले, 1 में जीव द्रव्य एक ही है, 2 में संसारी मुक्त है, 3 में उत्पाद व द्रव्य रूप से 3 भेद है, गतियों के पीछे 4 भेद। इस तरफ से एक आपस में 6 द्रव्यों का, 5 अस्थिकाय का, 7 तत्वों का, 9 पदार्थों का नंबर गेम्स इस स्थाना हमारे पास बहुत कम है, but that is what it shows. It's basically to rehearse the knowledge and remove the doubts. Samavayanka is the comparisons. If we take one across the board, क्या ये कौन सा संपूर्ण द्रव्य में परस्पर किस किस धर्म के अपेक्षा से सादृश्य है, ये होता समानता का समवायांक में ये कहते। फॉर एग्जाम्पल आई रिमेम्बर जम्बू द्वीप और दरबार सिद्धि का जो एरिया है इज इक्वल। सो जितना जम्बू द्वीप का एरिया है उसका विस्तार है, उतना ही विस्तार वहां पे सो व्हाट यू कॉल सरवार सिद्धि का है। मानुष्य क्षेत्र का कितना एरिया उतना एक ऋतु विमान का है।
सौधर्म का ऋतु विमान है उसका। ये लाइक दैट वी हैव समवायिक रूप से भी बातें करते हैं, बहुत सारे तत्वों को भी बात होती है। व्याख्यान प्रज्ञप्ति सूत्र में जो ऑल दैट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशंस, जीव है या नहीं, वक्तव्य वक्तव्य, नित्य अनित्य, एक अनेक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे 60,000 प्रश्नों का व्याख्यान उन दिनों में हुआ करता था, आजकल कम है, एग्री। नाद धर्म कथा अथवा ज्ञातृ धर्म कथा, सो ये जो है जीवादि द्रव्यों का, वस्तु का, आई एम अनेबल टू रीड द टॉप लाइन, I do not know how to come out of it. 1 second, give me, I'll stop and come back. ये क्षमा कीजिएगा। Maximum में, oh, it has gone to save. Right, very nice, you are doing right. Anyway, so तीर्थंकरों का महात्म्य, आई कैन रीड जीवादि द्रव्यों का, तीर्थंकरों का दिव्य ध्वनि का समय तथा महात्म्य, उत्तम क्षमादि 10 धर्म का वर्णन, सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय धर्म का स्वरूप बताया गया है, और तथा गणधर, इंद्र, चक्रवर्ती आदि की कथा उपकथाओं का वर्णन है, यह आक्षेपणी के वजह से। उपासकाध्यायन, दैट इज फॉर श्रावक के लिए, सो 11 प्रतिमा संबंधी व्रत, गुण, शील, आचार तथा दूसरे क्रियाकांड और मंत्रों का भी सविस्तर वर्णन है। बिकॉज श्रावक जो है कभी कभार ये मंत्र का भी उपयोग लेता है अपना बचाने के लिए। सो 12,000 मंत्र जो है तो मूल मंत्र से निकला करके वर्णन मिलता है। अंतकृत दशांग, दिस इज समथिंग, और तीर्थंकर के समय में उच्चतम उत्तम रूप से दश मुनि कैसे 4 प्रकार का तपस्या करके और सभी उपसर्गों को सहन करके संसार से अंतकृत किया, मोक्ष गए, उसका वर्णन है। सो 10 का भगवान महावीर के टाइम पे 10 का नाम है, बट टोटल हमें नहीं मिलता टोटल, बट अनुत्तर औपाधिक दशांग भी इक्वलेंट है, सेम 10 मुनियों का वर्णन, बट ये गौर उपसर्ग सहन करते हुए अंतिम में अपना प्राणों का आहुति देखते हुए उन्होंने विजय आदि 5 अनुत्तर विमान, विजय वैजयंता पराजित है सर्वार सिद्धि जो कह रहे हैं हम, 5 अनुत्तर विमान गए हैं, 33 सागर उनका आयु है, बहुत उत्तम करते हैं। इसमें एग्जाम्पल वी कैन टॉक अबाउट इट, तीनों पांडवस, पहले तीनों वाले इसमें हम गिन सकते हैं, तो उनका बड़ा उपसर्ग सहन करके वो लोग गए हैं। प्रश्न व्याकरण अंग, दूध वाक्य का नष्ट, मुष्टि, चिंता आदि अनेक प्रकार के प्रश्नों का अनुसार 3 काल संबंधी धन धान्य आदि का लाभालाभ, सुख दुख, जीवन मरण, जय पराजय आदि फलों का वर्णन है। क्योंकि भव्य जीव अभी भी संसार अवस्था में है, वो राजा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके लिए ये प्रश्न व्याकरण में ये सारे जो है लौकिक विषयों के ऊपर वर्णन है, और प्रश्नों का अनुसार आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेजनी, निर्वजनी, इन 4 प्रकार का कथाओं का भी समावेश रखा होता है। विपाक सूत्र आई टोल्ड इज वेरी बिग वन। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार शुभाशुभ कर्मों के तीव्र, मंद, मध्यम आदि अनेक प्रकार के अनुभाग शक्ति के फल देने के रूप कर्म विभाग का विस्तृत वर्णन है। दृष्टिवाद के बारे में पीछे हम कहते हैं वो इट इज विशद है, क्योंकि उसको 5 भाग में हमने कहा कि परिक्रम सूत्र है, प्रथमान योग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसलिए चूलिका, इसलिए उसका वर्णन अलग किया। न पूर्वगत विषय 14 पूर्वों का क्या करता है। सो फर्स्ट वाला उत्पाद पूर्व है, जिसमें पुत्कल, काल और भावादेश का जब जहां पर और जिस प्रकार से पर्याय रूप से उत्पादों का वर्णन किया जाता है, वह उत्पाद पूर्व है। सो ये सारे जो हैं कि कैसे पुत्कल का चेंजेस हो रहे हैं, कैसे जीव का चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज उत्पाद इज समथिंग कॉमन फॉर ऑल, तो उत्पाद पूर्व में यह कहा जाता है कैसे वी नीड टू नो इट, कब, कहाँ पे, किस प्रकार से एक्सेट्रा। जिसमें चतमस्त व केवलियों के वीर्य का, सुरेंद्र और दैत्येंद्रियों के वीर्य और वृद्धि का, दैत्येंद्र में भवनवासी लोग, असुर कहते हैं, राजा चक्रवर्ती बलदेवों का वीर्य लाभ का,
द्रव्यों का आत्मवीर्य, परवीर्य, अभय उभयवीर्य, क्षेत्रवीर्य, भाववीर्य, ऋषिवीर्य, तपोवीर्य एवं सम्यक्त का लक्षण का कथन किया गया है, वह किया जाता है वीर्य प्रवाद पूर्व। सो क्योंकि वी हैव टू हैव एन एस्टिमेट ऑफ उनका बल कितना है, किस लिए आया है, ये सारे इसमें वर्णन होता है, जिसमें 6 द्रव्यों का भाव व अभाव रूप पर्याय के विधान से द्रव्यार्थिक और पर्यायिक नयों दोनों नयों के अधीन एवं प्रधान व अप्रधान भाव से सिद्ध स्वपर्याय और पर पर्याय द्वारा 60 लाख पदों से निरूपण किया गया। इसका अस्ति नास्ति प्रवाह। अस्ति नास्ति प्रवाह में यू हैव टू आस्क राइट क्वेश्चंस। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, अस्ति अव्यक्त, नास्ति अव्यक्त, अस्ति नास्ति अव्यक्त, सप्तभंग का जन्म होता है यहाँ पे। अर्थात जिसमें स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव के द्वारा 6 द्रव्यों का अस्तित्व है, और पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव के द्वारा उनके नास्तित्व का निरूपण किया जाता है। अस्ति नास्ति प्रवाद, प्रवाद पूर्व है, यह वाद नहीं प्रवाद है, जिसमें अनादि निधन, अनादि सनिधन, साध्य अनिधन और साध्य सनिधन आदि विशेषण से 5 ही ज्ञानों का प्रादुर्भाव, कि यही ज्ञान, बार बार कहता हूँ, हम जो ज्ञान हम पढ़ रहे हैं यह ज्ञान प्रभाव से हमें मिला है। विषय स्थान इनका तथा ज्ञानियों का, अज्ञानियों का और इंद्रियों का प्रधानता से विभाव बतलाया गया है, ये ज्ञान प्रभाव है, जिसमें वाक्योक्ति, वचन संस्कार के कारण प्रयोग, 12 भाषा, वक्ता, अनेक प्रकार का असत्य वचन और 10 प्रकार का सत्य सद्भाव, इनका प्रोग्राम की गई है सत्य प्रवाद है। आई थिंक वी स्टडीड दैट ड्यूरिंग योग में, हमने कहा कौन सा 10 प्रकार के सत्य है, लोक सत्य है, राज सत्य है, देश सत्य है, एक्सेट्रा, उसके हिसाब से होता है, बिकॉज ये प्रकार से लाइक दैट, उसको बहुत सुंदर तरीके से हमारे आगम में वर्णित है। जो श्रुत ज्ञान 26 करोड़ पदों के द्वारा जीव ज्ञान, सुखादिमय, कर्ता, भोक्ता आदि धर्मों से युक्त है। अभी इन्होंने द्रव्य संकल्प का कर्ता, भोक्ता, इसका 9 प्रकार के हैं, और इन सभी का वर्णन करता आत्म प्रभात पूर्व में होता है, जिसमें कर्म का, आई टोल्ड यू, कर्म प्रभात अंक है। कर्म का बंध, उदय, उपश्रम, निर्जरा रूप पर्यायों का अनुभाग, प्रदेश और अधिकरण तथा जगन्य मध्य में उत्कृष्ट तिथि का निर्देश किया जाता है, तो कर्म प्रभात है, जिसमें येर्यापत कर्म आदि 7 कर्मों को भी निर्देश किया गया है, जिसमें व्रत नियम, आई थिंक फर्स्ट लाइन आप पढ़ लीजिए, प्रतिमा विराधन, आराधन और विशुद्धि का उपक्रम, श्रमणता का कारण तथा द्रव्य और भाव की अपेक्षा परिमित या अपरिमित काल रूप प्रत्याख्यान का कथन हो, वह प्रत्याख्यान नामक पूर्व है। क्योंकि इसमें प्रत्याख्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे डिटेल पता होना चाहिए, ताकि आप अपने आप को एस्टिमेट करें, आचार्य भगवान सामने अपने यथास्थिति बताएं, उसके अनुकूल उन्होंने प्रायश्चित द्वारा का उपचार करेंगे। जो श्रुत ज्ञान 8 निमित्त, 500 महाविद्याएं तथा 700 अल्प विद्याएं के प्ररूपण करता विद्यानुवाद है। इसमें समस्त विद्याओं, 8 महानिमित्तों, उनके विषय, राजु राशि विधि, क्षेत्र, श्रेणी, लोक प्रतिष्ठा, संस्थान और समुद्घात का वर्णन किया जाता है। इट इज वेरी विश्व रूप से राजु राशि बताइए, वहां तक सात, तो राजु का कैसे कैसे उसकी गमनागमन का कारण, उनमें सांगुष्ठ प्रेषणादि 700 महावल्प विद्याएं, रोगिणी आदि महाविद्याएं 500 महाविद्याएं हैं। अंतरिक्ष, भौमय, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन और चिन्ह, ये 8 महानिमित्त हैं। क्या 8 महानिमित्त ज्ञानी हुए थे भद्रभाग स्वामी, इसलिए उन्होंने दक्षिण को ब्रह्म विहार किया था। सो अंक महानिमित्त होना, 5 अंग का होता है, वो अलग होता है, पंचांग कहते हैं, बट अष्टांग, ये अष्टांग महानिमित्त हैं, उनका विषय लोक है। क्षेत्र करता आकाश, इसमें बड़ा विवरण, इसलिए आप देखेंगे पूर्व ज्ञान में इतना विशाल रूप से, विशुद्ध रूप से वर्णन होने से कोई भी आके भव्य का सार्वहित के लिए, कल्याण, लोक कल्याण के लिए ऋषि मुनि महाराज, आचार्य ऋषि द्वारा राजा जब आके मांगेगा, तब वो यदा कथित तो एडवाइस देते थे, जिसमें तीर्थंकर, बलदेव, वासुदेव और चक्रवर्ती आदि 63 सलाहकार पुरुषों को थे।
सभी का गर्भावतरण नहीं होता, आदि कल्याण की प्रेरणा की जाती है, उसे कल्याणवाद कहलाती है। मतलब तीर्थंकर का होता है, बाकी सारे को उनका जो वैभव के बारे में भी उसके वर्णन होता है, ये कल्याण प्रभात पूर्व है, जिसमें शरीर चिकित्सा आदि अष्टांग आयुर्वेद भूति कर्म अर्थात भस्म लेप नाति जांगुली प्रक्रम अर्थात विष चिकित्सा और प्राण व अपान वायुओं का विभाग, इनके विस्तार से वर्णन किया गया है, वो प्राणावायु पूर्व है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इसी को लेके अगस्त्य मुनि और अनेक लोग ने इसको रख लिया अपने हिसाब से, उनको बड़ा रुचिकर रहा इसमें। उच्छ्वास आयु प्रमाण इंद्रिय प्राण आयु प्राण इंद्रिय प्राण और पराक्रम अर्थात बल प्राण, इन प्राणों की वृद्धि एवं हानि का वर्णन होता है। वी सी इट इन ज्ञानार्णव ग्रंथ में थोड़ा वर्णन है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव यू शुड बी हेल्थी एंड एक्टिव सो दैट यू कैन धर्म में आगे बढ़ सकते हैं। ने जिसमें लेखन आदि 72 कलाओं का, स्त्री संबंधी 64 गुणों का, शिल्पों का, काव्य संबंधी गुण दोष क्रिया का, छंद रचने की क्रिया और उसमें फल के उपभोक्ताओं का वर्णन किया गया है, वो क्रिया विशाल पूर्व है। जो लोक के सारभूत मोक्ष सुख और उनके उपायों को मुख्य रूप से वर्णन करता है, उसे लोक बिंदुसार जाना चाहिए। 8 प्रकार के व्यवहारों, 4 बीजों और क्रिया विभाग का उपदेश किया जाता है। सो इतना जो है इन्होंने संक्षिप्त रूप से हमारा पास अवेलेबल। लेट मी सी द टाइम, otherwise I can just see, okay, I have some 15 minutes. अंग प्रविष्ट है, हमने 12 अंगों का, 14 पूर्वों का, उसके संबंधी परिक्रम चूलिका के बारे में थोड़ा बहुत हमने जाना। सो नाउ सामाय्य दुये वंदन पटिकमनम वेनय्य कितिकम्मम कालिय उत्तरच्छयनम कप्पम तक कप्प कप्पम च मह कप्पम पुंडरीयम मह पुंडरीयम असीदिया चेव वंदे चौदसे दे अन्नेवीय अंग पच्छत सुदे। अंग वाक्य को वंदना है। सो क्या है वो? सामायिक चतुर्विंश स्तव वंदना प्रतिक्रमण वैनयिक कृतिकर्म दशवैकालिक उत्तराध्यायन कल्प व्यवहार कल्पाकल्प महाकल्प पुंडरीक महापुंडरीक निश्चिका, इन अंग वाक्य श्रुत के 14 प्रकीर्ण का भेद। प्रकीर्ण में तारा जैसा, तो कंपेयर टू दोस पूर्व ज्ञान के ये छोटे हैं, इसलिए दे आर सैटेलाइट्स। तथा अन्य भी अंग वाक्य श्रुत की वंदना करते हैं, यानी कि वो पीछे मैंने कहा था 88 मिलियन जो वर्ड्स पद रह गए थे उसमें से ये निकला। यू ऑल नो सामायिक प्रकीर्ण का बहुत विस्तार वर्णन है। सो ये करते हैं, इट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, और नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव सामायिक कहाँ करना है, कैसे करना है, किस तरह विधि विधान सब कुछ इसके बहुत विस्तार से सामायिक का वर्णन होता है। उसके हिसाब से हम अपने आप को सुनिश्चित करके कर सकते हैं। चतुर्विंश स्तवक किरण उस काल संबंधी 24 तीर्थंकरों की वंदना करने की विधि, उनका नाम संस्थान उच्छेद 5 महाकल्याणक 34 अदृश्यों के स्वरूप और तीर्थंकरों की वंदना की सफलता का वर्णन करता है। सो रोज हमें सामायिक तो षडावश्यक क्रिया 6 में सामायिक चतुर्विंश स्तव वंदना, एक जिनेन्द्र देव संबंधी और उन एक जिनेन्द्र देव के अवलंबन से जिनारे संबंधी के वंदना का वर्णन होता है। ये वंदना ये समग्र रूप से प्रत्येक रूप से ये 2 प्रकीर्ण का वर्णन। प्रतिक्रमण प्रकीर्ण यू नो इट, दैवसिक रात्रिक पार्षिक चातुर्मासिक सांवत्सरिक इर्यापतिक और औतम स्थानक, इस प्रकार प्रतिक्रमण 7 प्रकार का है। इन सभी प्रतिक्रमणों को वर्णन करता है। विनय प्रकीर्ण इन्हें 5 प्रकार का है, ज्ञान दर्शन चारित्र तपो और औपचारिक विनय है। जो पुरुष गुणों से अधिक हैं उनमें नम वृत्ति का रखना विनय है। साधने योग्य द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का आश्रय कर ज्ञान विनय दर्शन विनय चारित्र तपो विनय औपचार विनय, इन 5 विनयों के लक्षण भेद और फल का कथन विनय पिनय में मिलता है। क्योंकि विनय में हमें सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे, हमारे वो जो 363 फॉल्स क्रिएट मान चले जाएंगे। सभी को विनय नहीं कर सकते हैं, या पात्र के हिसाब से विनय करना और ज्ञान का विनय दर्शन, इसलिए विनय पढ़ने के बड़ा इंपॉर्टेंट आगम है।
कृति कर्म प्रकीर्णक जिनेन्द्र देव सिद्ध आचार्य उपाध्याय को वंदना करते समय जो क्रिया की जाती है वह कृति कर्म कहलाता है। उस कृति कर्म का आत्माधीन होकर किए गए 3 बार प्रदक्षिणा, 3 अवनति, 4 नमस्कार और 12 आवर्त आदि रूप लक्षण भेद तथा फल का वर्णन होता है। 12 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम करते हैं 3 प्रदक्षिणा हाथ को घुमाना है, 3 अवनति सिर को झुकाना है, 4 नमस्कार बैठ के उठ के और 12 आवर्त होता है। बहुत सुंदर तरीके से वर्णन मिलता है क्रियाकलाप में। 10 वैकालिक प्रणय के विशिष्ट काल विकाल है, उसमें जो विशेषता होती है वह वैकालिक है। वे वैकालिक 10 है। उन 10 वैकालिक को 10 वैकालिक नाम का अर्धाधिकार है। ये द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का आश्रय कर आचार विषयक विधि और भिक्षाटन विधि की प्ररूपणा करता है। जो 10 वैकालिक हमारे पास है बहुत ही कम है, पूरा नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। बट फिर भी जो है उनको वंदना करते हैं जिन्होंने संकलन किया है। उत्तराध्ययन प्रकीर्णक जिसमें अनेक प्रकार के उत्तर पढ़ने के मिलते हैं और उत्तराध्ययन के 4 प्रकार के उपसर्गों और 22 प्रश्नों को सहन करने के विधान का और उनके सहन करने के फल का तथा इस प्रश्न के अनुसार यह उत्तर होता है, इसका वर्णन इसमें मिलता है। तो उत्तराध्ययन कुछ अलग, अभी हमारे पास उत्तराध्ययन है, उसके साथ हम कंपेयर करके देख सकते हैं। कल्प व्यवहार प्रकीर्णक कल्प नाम योग्य का, कल्प मीन्स योग्य और व्यवहार नाम आचार। कल्प व्यवहार मीन्स योग्य व्यवहार, उचित व्यवहार का आचार का कहा जाता है। योग्य आचार का नाम कल्प व्यवहार। कल्प अकल्प प्रकीर्णक, इसमें कल्प अकल्प क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका विस्तीर्ण वर्णन है। महाकल्प प्रकीर्णक दीक्षा ग्रहण, दीक्षा, आत्म संस्कार, संलेखना और उत्तम स्थान रूप आराधना को प्राप्त हुए साधुओं के जो करने योग्य हैं उसका द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का आश्रय लेकर प्ररूपणा करता है। काल और संवहन का आश्रय के साधुओं का योग्य द्रव्य और क्षेत्र आदि का वर्णन करता है। उत्कृष्ट समन्वादि विशिष्ट द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का आश्रय लेकर प्रवृत्ति करने वाले जनकल्पी साधुओं के योग्य त्रिकाल योग आदि अनुष्ठान का और स्थविर कल्पी साधुओं के दीक्षा, शिक्षा, गणपोषण पुंडरीक प्रकीर्ण इंद्र आदि सामानिक इंद्र और सामानिक आदि में उत्पत्ति के कारण वो दान, पूजा, शील, तप, उपवास, सम्यक संयम और काम निचरा का तथा उनके उपवास स्थान और भवनों का वर्णन किया जाए। अक्सर ये प्रश्न मन में आता है, ये सौधर्मेंद्र कैसे बने, ये क्या किया इन्होंने, क्या पुण्य करके आए। तो ये वाला प्रश्न का पुंडरीक करने को मिलता है। 6 कालों से विशेष देव, असुर और नारकियों में त्रिंच और मनुष्यों की उत्पत्ति के प्रोग्राम भी इसमें मिलता है। इस काल में त्रिंच और मनुष्य इन कल्पों व इन पृथ्वियों में उत्पन्न होते हैं, इसका यह प्रोग्राम करता है। यह अक्सर हमें गति आगति में मन में आता है, क्या क्या होगा उन्होंने, क्या पुण्य किया होगा, क्या तब किया होगा। ये है अक्सर हमारे राम गोपाल भाई सब पूछे कहाँ तक पहुंचेंगे हम, ये सारे पुंडरीक प्रकीर्णक में आपके उत्तर मिलता है। महापुंडरीक प्रकीर्णक काल का आश्रय कर समस्त इंद्र और प्रदेन्द्रों वासुदेवों उत्पत्ति कारण रूप तबु विशेष आदि आचरण का वर्णन होता है। देवों के देवियों में उत्पत्ति के कारण तप, उपवास आदि का भी प्ररूपण करता है। निश्चिति का प्रकीर्णक का प्रमाजन्य दोषों को निराकरण करने को निश्चिति कहते हैं और इन निषिद्धि अर्थात बहुत प्रकार के प्रायश्चित के प्रतिपादन करने वाले प्रकीर्णक को निश्चिति का कहते हैं अथवा काल का आश्रय कर प्रायश्चित विधि और अन्य आचरण विधि की रूपणा करता है। निषिद्धि मतलब नहीं मरण उपरांत जो समाधि होता है उसका नहीं, और as we are living we are living. Last time I showed this slide to show the diminishing returns हमारे पन्नवनिच्छा भावा अनंत भागो दु अनभिलपानम पन्नवनिच्छानम पुनः अनंत भागो सुधो निवृत्तो, यानी कि केवली भगवान के श्री मुख से दिव्य निरूप निकलता है। एक्चुअली ही इज एबल टू फिल्टर 1 by infinite पार्ट ओनली, दैट इज प्रज्ञापनीय, और उनके दिव्य निरूप इतना भी आता है। सो 1 by infinite इन टर्म्स ऑफ पद के रूप से आप देखेंगे इज 1 by infinity। पुनः प्रज्ञापनीय जीवादि पतोत्तंग अनंतवां भाग द्वादशंग
स्कंद में विषय रूप से गणधर परमेश्वर निवृत्त करते हैं. So we have the really diminishing returns in terms of पद, but it is द्रव्य स्रोत की बात कर रहे हैं. शुद्ध केवलियों के भी अगोचर अर्थों को कहने की शक्ति दिव्य ध्वनि में होती है और दिव्य ध्वनि से भी अगोचर अर्थों को ग्रहण करने की शक्ति केवल ज्ञान में है. So I'm coming to almost end of it. ये जो शुद्ध स्कंद है वृक्ष रूप से करना है, ये दक्षिण में प्रचलित है. जो हमारा जनकंची मठ है बहुत ही प्राचीन मठ में मूल स्थान में पार्श्वनाथ तीर्थंकर के पीछे में ये we can see the श्रुत स्कंद. So ये श्रुत स्कंद का you see them as पूरा डिटेल्स श्रुत पदों के साथ सारा दिए, जल कथा, चूलिका एक्सेट्रा, ये वाला आचार्य विद्या गुरु के यहाँ अपना कर इसको और भी जोड़ दिया उन्होंने, चारों कोने में ये मंत्र जोड़ दिया. शुद्ध ज्ञान का महात्म्य. शुद्ध केवलम च नानम दोन्निवि सरिसानी वोंति बोहादो. शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान में दोनों में कोई कम बड़ा नहीं है, दोनों बराबर है. सुधनानम तो परोकम पच्चकम शुड भी केवलम नानम. केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि साद्वाद रूप से हमें समझ के हमें समझ में आ रहा है. साद्वाद केवल ज्ञाने सर्वतत्व प्रकाशिने वेद साक्षात ही अवस्तु अन्यतम भवेद. आप मीमांसा आचार्य समंत्र कहते हैं साद्वाद दैट इज शुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान में सर्व तत्व प्रकाश हो जाता है. इसके एक ही भेद है, एक साक्षात है, एक दूसरा साक्षात परोक्ष है. बट इसमें जो नहीं कहा जाता है ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं जिसमें कहें. सो मैंने कहा कि थैंक्स टू यू पीपल, एस्पेशली डॉक्टर भंडारी साहब एंड अदर जेएस पीपल, ये जो आज ये टॉक है पूर्व संध्या श्रुत पंचमी पूर्व संध्या में है. कल जो श्रुत पंचमी इसलिए मनाया जाता है, षड्घंटा को बोध बलियाचार्य ने मदुरै में, तमिलनाडु के मदुरै में उन्होंने रचना की थी. एवं षड्घंटाकम रचना प्रविधाय बोध बल्या आरोप्य असद्भावस्थापना पुस्तकेषु तथा ज्येष्ठ सिद्ध पक्ष पंचम्यां चादुर्वण्य संक समवेत है तत्पुस्तक उपकरण व्यदात क्रियापूर्वक पूजाम. सुध पंचमी तेन प्रख्यातिम तिथिरियम पराम आप अद्यापि येन तस्याम सुध पूजा कुर्वते जैनाः. उसके स्मरण में आज भी सुध पंचमी मनाया जाता करके कह रहे हैं. दैट केम आउट एज अ कोइंसिडेंस. सो और ये पुष्पदंत आचार्य के वनवास को इंटरेस्टिंगली हीरालाल जैन साहब ने कहा मेरे तालुक वनवासी को वैंडी वॉश कह रहे हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट दोस आर ऑल थिंग्स रिसर्चेबल इश्यूज. सो अत्तम भाषय अर्हा शुद्धम गंधि गणहरा निपुणम शासन से हेटाये तवो शुद्धम पवत्तयि. आवश्यक निर्मित में बहुत सुंदर रखे. अत्तम भाषय अर्हा शुद्धम गंध, बड़ा राइम में उन्होंने बहुत सुंदर तरीके आवश्यक निर्मित में है. I bow my head devoted to the grand ocean of scriptural knowledge, script oral, Sudha Gyan, revealed by Arigant and composed by Ganadhara Sanda. So मैं ये करता हमारा शुद्ध ज्ञान में ये हम लोग का जब भी हम आर्टिकल बुक्स वगैरह लिखते हैं ये याद रखना चाहिए. ये स्टैंडर्ड्स अन्यूनम अनतिरिक्तम, ना न्यून होना चाहिए या अतिरिक्तम होना, एक्सेस होना. यादादत्यम बिना च विपरीतात्, it should be as is where is basis and na vipareetat. निसंदेहम वेद यताहु तज्ञानम आगमिना. ये बहुत सुंदर तरीके से प्रथम श्रावकाचार्य में आचार्य समुद्र ने हमारे लिए ये स्टैंडर्ड दिया. सो आई थैंक अभिभद फल सिद्धेर अभ्युभाय सुबोधय प्रभुति से शास्त्रात् तस्य उत्पत्तिराप्तात् यदि भवति स पूज्यस् तत्प्रसादात् सुबुद्धय नहि कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति. अक्षर मात्र पदस्वरहीनम व्यंजन संधि विवक्षित एवं साधुभिरत्र मम क्षमितव्यम कोन विमुख्यति शास्त्र समस्ते. So with this study, with this
Vinayanjali. I thank all of you for giving me this great opportunity. Thank you so much, Sadhguru Jai Jinesh. जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने जिस तरह से वर्णन किया, निश्चित रूप से सबों की आंखें खुल गई होंगी कि हमारा श्रुत साहित्य कितना विशाल रहा है। वो एक अलग बात है कि आज हमारे पास में कम उपलब्ध है, लेकिन उसके बाद भी इतनी सारी टीकाएं हुई हैं कि वो जो सभी लोग कहते हैं कि जैन जो साहित्य है, जितने और दर्शन है उनके मुकाबले में सबसे ज्यादा है, जबकि अपनी आबादी सबसे कम है। लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपने कहा और इतना स्पष्ट था, फिर भी मैं सोच रहा था कि शायद प्रश्न नहीं आएंगे। दो लोगों के हाथ रेज हो रखे हैं। डॉक्टर LCN साहब, सबसे पहले आप पूछिए। मैं बस खाली एक वर्ड बोलना चाहता हूँ, सुपर हाँ जी। प्रेजेंटेशन। Yeah. डी कुमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इट इज सुपर प्रेजेंटेशन। Thank you, sir. Thank you so much.